ارے کوئی لڑائی نہیں ہے یار، شیعہ سنی کوئی جھگڑا نہیں ہے، خدا کی قسم شیعہ سنی لڑائی میں فائدہ اس کا ہو رہا ہے جس کا اسلحہ بک رہا ہے، وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے، وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے، ورنہ نہ شیعہ سنی کے دشمن نہ سنی شیعہ کے دشمن، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ ہم ایک گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ہم ایک سکول میں پڑھتے ہیں، ہم ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں، ہم بریک ٹائم ایک لنچ باکس میں سے خدا کی قسم لنچ کرتے ہیں، ہم شام کو اکٹھی ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، ہم 18 19 یہ ٹین ایج سے باہر نہیں آتے، وی تو ٹپدے ہیں سن رولے چھپا دیتا جاتا ہے لمحے کے لیے۔ میرے بھائیو یہ سنیپ چیٹ، یہ ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کے یوزرز جن کی پوری پوری ہتھیلی میں پوری پوری کائنات سما گئی ہے، مولا کا واسطہ مذہبی دیواروں کو توڑو، انسانیت کے لیول پہ آؤ، دو شیعہ دو اہل سنت برادران کسی جگہ پہ بیٹھ کے الگ مولا کا واسطہ۔ میری ویڈیو جہاں تک جا رہی ہے، دیکھنے والے سامعین ناظرین جو یہاں یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، لمحے کے لیے میرے بھائیوں الگ بیٹھ کے سوچو کہ علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو مذہب کی حدود میں بند نہ کرو، علی صرف شیعوں کا پیر نہیں ہے، علی دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا فلسفر بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے، سب سے بڑا انجینئر بھی ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، سب سے بڑا جج بھی ہے، سب سے بڑا کریم بھی ہے، سب سے اچھا خطیب بھی ہے، سب سے اچھا دوست بھی ہے، سب سے اچھا بھائی بھی ہے۔ اہل سنت برادران نے یہاں تک لکھ دیا کہ محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی کوئی نہیں، میدان جنگ میں علی سے بڑا جنگجو کوئی نہیں، علی کے در پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا قریب کوئی نہیں، علی کے منبر پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی کے پاس کوئی فیصلہ ہاتھ نیچے نہ کریے گا، فیصلہ لے کر آ گیا تو علی سے بڑا جج کوئی نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہاں تک لکھ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انسان تو انسان، جنات تو جنات، اللہ کے فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، علی کے در پہ جو آیا، جیسے آیا، جب آیا، جو بن کے آیا، علی نے اسے خالی نہیں بھیجا، علی نے مانگنے والے سے مذہب نہیں پوچھا، علی نے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی، علی نے یتیم کے سر پہ چادر دیتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھی۔ میں 10 گھنٹے بات کرتا رہوں ولایت علی پہ، بات کم ہے، میں مولانا بلال کاظمی کے 2 مصرے پڑھ کے میں پورا سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ کاظمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ علی نہ دے، یہ حقیقتیں ہیں، ذکر کی قسم۔ آئیے 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 تشریف لائیے جناب غلام عباس قندانی صاحب، میرے بہت اچھے بھائی، نہایت محبت کرنے والے اچھے انسان۔ علی نہ دے تو زمانہ، یہ والی سائیڈ، تسی میرے والے پاسے ویدے بھی نہیں پہ۔ علی نہ دے تو زمانہ، بہت کم باخدا کوئی مظفر گڑھ کے علاقے میں سال میں 1 یا 2 بار آتے ہیں ہم بیچارے، ہر سال آئیں گے لیکن میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں، کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، ضائع نہ کیجئے گا۔ ادھر دیکھیے گا، اب وقت نہیں ہے، میں بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں، میرے پیچھے بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ میں ان کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں علی عباس عسکری آپ کو اس کے بعد جہاں بھی ملے آپ مجھے وہاں پر روکیے گا، میں جہاں بھی مجلس پڑھنے آؤں، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ میں جب بھی یہاں پہ آؤں، میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو اگنور کیجئے گا، لیکن جو مصدر ہے اسے سمجھئے گا۔ آپ جب مناسب سمجھیں آپ مجھے بتائیے گا، آپ کو عالم علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سائنٹسٹ علی سنائیں گے، آپ کو انجینئر علی سنائیں گے، آپ کو فلسفر علی سنائیں گے، آپ کو جج علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سخی علی سنائیں گے۔ ارے چھوڑیے اس بات کو کہ بس علی نے تلوار چلائی اور بات ختم، تجھے کیا پتا علی کون، تجھے کیا پتا علی کیا۔ پڑھ دوں جملہ، کچھ ہو گیا تو سامنے سو۔ بابا جی دنیا اس سے بڑا
आलिम देखेगी जो मिंबर सलूनी पे बैठ कर दुनिया से कहे मुझसे कुछ पूछो, और बीच मजमे से यहूदी उठ के सवाल करे, या अली जरा बताइएगा आपका खुदा सब कुछ देखता है? पर यो पंचायत वाला मजमा वे डेरेदार माहौल है, मुर्शद इजाजत लेके दुआ कीजिएगा। मैं इतने जिंदा मजमे में जहां खुदा की कसम दाद ऊपर नीचे होने पे ब्लड प्रेशर लो और हाई होते हैं, मैं तमाम रिक्वायरमेंट साइड पे रख के अपने दिल का एक दर्द बयान कर रहा हूं। दुनिया ऐसा आलिम देखेगी जो मिंबर सलूनी पे बैठ कर कहे, यहूदी मैं अली कह रहा हूं, यूं तो मेरा खुदा सब पे नजर रखता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे वो भी नहीं देखता। ये पढ़े लिखे, ये यंग जनरेशन मेरे सामने बैठ, नहीं बोलोगे दुख लगेगा। आपसे ज्यादा मस्जिद में बंदे परेशान हो गए और कहानियां चली, आज अली ने क्या कह दिया, वो क्या है जिसे खुदा, हाय हाय हाय, अरे वो क्या है जिसे खुदा भी नहीं देखता। सीना अतर पे 3 बार हाथ मार के मेरे मुर्शद ने फरमाया, और यहूदी आलिम सुन समझ याद रख, मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। बात कर, तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का। अरे 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 अब छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। मैं अली कह रहा हूं, बहुत बड़े बाप के बेटे और बहुत प्यार करने वाले भाई अम्मार साहब, अम्मार नवीद आशिक साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार की मुझ पे बहुत मेहरबानी है, बहुत प्यार करने वाले शख्स थे। मैं अली कह रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। 1.5 मिनट बकाया नौकरी है, 1.5 मिनट गिन के 1.5 मिनट, फिर उसके बाद पता नहीं कब आपका सलाम करने का मौका मिले। बीच मजमे से उठ के एक यहूदी ने सवाल किया, या अली मुझे आपके आका की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। भाई ये मेरे 1.5 मिनट है, मौला का वास्ता, ये मेहरबानी करनी है, आपने देखना मुझे है। मैं अगर आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूं तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं बोर नहीं करने आया, लेकिन मैं आपसे मुखातिब हूं, आप कहीं और देखेंगे मेरा दिल टूट जाएगा। मैं इतने जिंदा मजमे से दिल तोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं बड़ा सेंसिटिव आदमी हूं, आप देखो बस मेरी तरफ। या अली मुझे आपके आका की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। आपके आका फरमा गए थे कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में था। या अली अगर आपके आका उस वक्त भी नबी थे तो फिर ये रहते कहाँ थे, इनकी रिहाइश कहाँ थी? जब कुछ नहीं था और ये थे, सवाल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब कुछ नहीं था और ये थे तो फिर ये इको बंद कीजिएगा, तो फिर कम कीजिएगा, तो फिर ये रहते कहाँ थे? अली फरमाते हैं मैं अली तुझे बताता हूँ, अब अली का इल्म सुना रहा हूँ। जितने अहले सुन्नत बिरादरान हैं, जब वापस अपनी बिरादरी में मेरे भाइयों जाना, उन्हें जाकर फ़कत इतना बताना कि शिया लोगों में सीरत नबी पढ़ी कैसे जाती है, सुनी कैसे जाती है। अली फरमाते हैं मुझसे सुन, तूने पूछा है मेरे आका रहते कहाँ थे जब कुछ भी नहीं था। अली फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क किया, उसने खल्क करने के बाद अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए। बाबा आमिर शाह जी, मैं चंगे चंगे शेर छोड़ के ना, तो मैं चंगे चंगे मिंबर कुट्टण वाले शेर छड़ के, ते मजमे पब्बल ते चाउण वाली गल्लां छड़ के मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, शायद किसी मसले का हल निकल आए। मेरा ज़मीर खुदा के सामने मुतमईन है, जो ऐसे ही जाकिर को इग्नोर करे मैं उस बंदे से कभी बात करता भी नहीं हूँ। बात उस बंदे से कर रहा हूँ जिसकी मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, जिसका मजलिस में ज़हनी हाजिर नहीं है, उससे क्या बात करूँ, देखना मेरी जानिब। अली फरमाते हैं उसने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को खल्क किया, उसके बाद अब उसने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए, फिर उसने 1,000 नूरी साल तक एक एक हिजाब में मेरे आका के नूर को रखा। तूने पूछा है ना ये रहते कहाँ थे, तो आ अली से सुन, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त करे तो। अली फरमाते हैं 1,000 नूरी साल तक मेरे आका का नूर एक एक हिजाब में रहा, वो हिजाब जो अल्लाह ने बनाए थे। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा, किसी में सुभान मलिकल मन्नान पढ़ा। अली फरमाते हैं 1,000 नूरी साल, आम साल नहीं, नूरी साल। आम साल ये आपकी घड़ी की टुक टुक वाला होता है, और नूरी साल ऐसा नहीं होता। इसे अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहते हैं लाइट ईयर, उर्दू में कहते हैं नजर का फासला।
ढेर सारे जवान हैं जो कॉलेज यूनिस तक पढ़े हुए हैं, तस्दीक करना मौला का वास्ता, मुझे इतने बड़े मजमे में पढ़े लिखे जवानों तनहा न करना। दुनिया का एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट गुजरा था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो एक थ्योरी लेकर आया था E=mc², जिसमें उसने रोशनी की रफ्तार को कैच किया था। रोशनी की रफ्तार जो उसे मुझे बल्ब बाल हो तो रोशनी हो बंजे दी स्पीड कितनी है, तो जो उसने नतीजा निकाला था वो था 1 सेकंड में 1,86,000 मील, यानी तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में तय करने वाली चीज को कहते हैं नजर का फासला, लाइट ईयर। जो चीज 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करे उसे 1000 नूरी साल तक कितना वक्त चाहिए, घर जाके कैलकुलेट करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इसे भी डिफाइन करूं। अली फरमाते एक एक हिजाब में 1,000 नूरी साल तक वो नूर उस जात की तस्वीरें करता रहा। अली फरमाते उसने सबसे पहले मेरे आका के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाब रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाबुल इज्जत में रखा, हिजाबुल इज्जत के बाद हिजाब इस्मत में अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब सिहानत में रखा, हिजाब सिहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत के बाद हिजाब सब्र में रखा। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा अगर ऐसे बैठे रहे तो। हिजाब सब्र के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब रिजा में रखा, हिजाब रिजा के बाद हिजाब वफा में रखा, हिजाब वफा के बाद हिजाब अता में रखा। अली फरमाते हत्ता के 20 हिजाबों से 1,000 नूरी साल तक जब मेरे आका का नूर उस जात की तस्बीहें करके बाहर आ गया तो यहूदी ये वो हसीन टाइम था जब एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। उसने अपने महबूब के नूर को सामने रखा, उसने कुछ नहीं किया, वो बस देखता गया और वो खिताब देता गया, वो देखता भी गया, वो फरमाता भी गया, तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है, तू ही खत्म। पता नहीं वो बंदे कौन है यार जो जाकिर की मेहनत बर्बाद करते हैं। तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है, तू ही खत्म रसूल है, तू ही नबियों का खातम है, तू ही बाइस तखलीक दो आलम है। अली फरमाते हैं ये वो प्यारा टाइम था जब ऊपर से खिताब आ रहे थे और नीचे से शुक्राने के सजदे जा रहे थे। नसीम भाई सिर चढ़ाए, ऊपर से अल्लाह खिताब असगर भेज रहा था, नीचे से नूर शुक्राने के नफल भेज रहा था। खिताब आ रहे थे, सजदे जा। कैमरामैनों तैयार रविया यार, खिताब आ रहे थे, सजदे जा। मैं सोशल मीडिया का जाकिर नहीं, मैं मिंबर पे मेहनत करने वाला हूँ। खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे, खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे। अली फरमाते फिर एक ऐसा टाइम आया उसने खिताब तमाम किए। जब उसने खिताब मुकम्मल किए तो मेरे आका के नूर ने सजदे तमाम किए। खिताब तमाम हुए, मेरे आका के नूर ने आखिरी सजदे से सर उठाया। अली फरमाते खिताब तमाम, सजदे तमाम। यहूदी ये वो प्यारा वक्त था जब उसने कुछ नहीं किया, वो बस अपने हबीब को देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। देख भाई नसीम पढ़ू जुमला, पढ़ू जुमला, पढ़ो। देखता गया, आप इधर देखिए, देखता गया, देखता गया। अली फरमाते यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अरे मौला का वास्ता बैठना मेरे भाइयों, अभी बैठना, अभी बैठना, मुझे जुमला पढ़ने देना आखिरी सफ तक। अली फरमाते उसने ऐसे देखा कि वो अपने बनाए हुए पर, अरे मुझे देखना ओ मेरे भैये, वो अपने बनाए हुए पर वो खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते जब वो आशिक हुआ तो फिर बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी। बाबा आमिर रबानी साहब की मिला, मैं किस बंदे से यहाँ निगाहे बेनिगाही की गर्मी की दाद लूं मुझे बताइए। यानी नूर को उस जात की निगाहे बेनिगाही की गर्मी लगी। जब गर्मी लगी तो पसीना आया, पसीना आया तो वो जो अर्क था उसके कतरात गिने गए। जब कतरात की तादाद गिनी गई तो वो तादाद थी 1,23,999। यानी एक कम, पता नहीं वो बंदे कौन है, एक कम 1,00,000 फिरोजी चोले वाले सरजामी, एक कम 1,24,000। अब मैं आपको बताता हूं इश्क कहते किसे हैं।
या इश्क होता क्या। हम बेचारों ने तो 2024 में इश्क बदनाम कर दिया, हमने तो बेकार कर दिया। बाबा रियाज शाह जी रत्तोवाल वाले, खुदा उनकी कब्र को ठंडक दे, वो फरमाया करते थे बस इश्क या इन्होंने उससे किया या उसने इनसे किया, अदरवाइज ना कोई कर सका न किसी से हो। हैरान हो के ना तैयारी कर बोलन दी, न कोई कर सका न किसी से हो सका, न किसी के बस की बात थी। उसने सोचा मैंने किया है इश्क। एक बात बताता चलूं, ये जो पसीना होता है ना, ये पसीना, ये महबूब का दूर बंदे को अपना भी अच्छा नहीं लगता, अपना भी चंगा नहीं लगता, महबूब दूर दी गल है। लेकिन इश्क इसे कहते हैं। उसने कहा मैंने किया है इश्क, मेरे इश्क को आया है पहला पहला पसीना, पसीना जाया कर दूं तो मोहब्बत की तौहीन है। अरे पसीना जाया, बैठिएगा अभी सुन के, पसीना जाया करूं तो मोहब्बत की वैल्यू खत्म हो जाती है। हम पसीना जाया नहीं करते, अरे हमने इश्क किया है। इश्क का तकाजा ये है, इसी पसीने को इकट्ठा करते हैं और इश्क किया है तो फिर इसी पसीने के एक एक कतरे के बदले में आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा। बैठना अभी जुमला सुनना, आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा बनाते हैं, यहया बनाते हैं, इलियास बनाते हैं, खिज़र बनाते हैं। उसने पसीना इकट्ठा किया पीर आमिर शाह जी बादशाह। उसने एक एक कतरे, मसाइब नहीं पढ़ूंगा अब हिम्मत खत्म हो रही है। उसने एक एक कतरे के बदले में एक एक नबी बनाया, एक एक कतरे के बदले में। शायद मैं जल्दी कर गया, शायद या तू समझ नहीं सकेगा मेरा फिरा, पसीने के कतरे से नबी बन रहे हैं। पसीने की ये वैल्यू आया ऐ सटिया, ये झटकना इस पसीने की वैल्यू है, ये झटकना इस पसीने की कीमत। रख सर पे कुरान, दाद न दे मुझे जवाब तो दे। और क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं, और जिसकी झटकी हुई खैरात को ईसा। बैठो, अरे बैठिए नीचे, अरे बैठिए, बात सुनिए अभी। अरे क्या वो हस्ती मुझ जैसा। बाबा जी मिंबर अस्करी छोड़ रहा है, आखिरी 15 सेकंड मैं कहता हूं पिंडाल पांव पर उठकर बोले हक अदा नहीं होता। ओए क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को आदम और ईसा कहते हैं। अली फरमाते हैं सुन, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे आका के पसीने से बना। अब उलमा, उरफा, उदबा, फुकाहा, खुतबा, फुकरा, शोरा, ये 6-7 तबके तालिब इल्म अली अब्बास अस्करी को उसके सवाल का जवाब दें। मैं सवाल कर रहा हूं इतना लंबा सफर करके, जो जो नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से बने, उन नबियों के नाम कैसे लिए जाते हैं आप मुझसे सुन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और तेरे पास सोचने का टाइम भी नहीं। और जो नबी मेरे आका के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रजी अल्लाह कैसे। मिल के बोलो